we had started off this chapter. In the Saturday session, I had summarized this chapter. Tuesday, I had taken the chapter along with NCERT, in which we started with what is federalism first. Second, what are the features of federalism? We learnt 7 features, that is, the country is divided into 2 or more units, and each level or the tier has their own jurisdiction. The constitution has given clear cut instructions on which subjects which body can make the amendments or laws. In case if there is any kind of dispute, then the courts are there to intervene. The revenues of each of the tier is also mentioned. Then we also read that federal system is different from unitary. In unitary also you have democracy, but a single government is ruling on the subordinates or the states. Whereas in federal, the states may or may not have the same political parties like India. Federalism caters to 2 dual objectives: the integrity of the country and the integrity and the accommodation of diversity. Then we have read about the roots coming together like US and holding together like India. Then the next concept that we learned is what are the features in Indian constitution that makes India a federal, or you may get the question like what is the threefold list that makes India a federal country. So in that you learned the union list, 100 subjects, the state list, 66, the concurrent, and if there is any dispute in the concurrent, then the legislation made by union is bound to be accepted. Then residuary subjects, special powers to some of the states like northeastern states. Then Jammu Kashmir had, now it doesn't have. Then union territories, the small areas or the territories where the union government has been given the power. Right now India is having 28 states and 8 union territories. These are all the questions which may come in your exams, because with the union territories नॉर्मली क्या होता है, बच्चे उसको उस पर्टिकुलर टॉपिक को छोड़ देते हैं, उनको लगता है उसमें क्या क्वेश्चन आएगा, लेकिन यस द क्वेश्चन कम्स दैट हु और विच पर्सन और द अथॉरिटी हैव द रूल. तो यूनियन गवर्नमेंट को स्पेशल पावर्स मिलते हैं एंड इट इज द प्रेसिडेंट हु डिसाइड्स. देन ये तो थे फीचर्स. देन how we practice these features in the reality. So to practice, to make federalism more effective, Indian government had adopted the linguistic states, yani the creation of the linguistic states on the basis of the languages they speak or the culture they follow. And this was decided under the State Reorganization Commission in 1956. Then language policy, we don't have any national language, but yes, Hindi is promoted, and of course English has also been taken as the official language. Besides Hindi, we have 21 scheduled languages which is acceptable at the levels of states. अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो द गवर्नमेंट कैन नॉट से हाउ आर यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, यू आर फ्रॉम मलयालम मीडियम, दे कांट कॉल.
Then we also have center to state relationship, which was in the initial period 1950 के बाद. मैं 50 इसलिए बोल रही हूँ बच्चा क्योंकि 1950 में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था. उससे पहले जो 2 साल थे, दैट वाज एन इंटरिम गवर्नमेंट. जवाहरलाल नेहरू ही हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन दैट वाज अ टेम्पररी गवर्नमेंट. द परमानेंट गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1950 आफ्टर द फर्स्ट इलेक्शन. तब से लेकर आपका अराउंड 70 तक एक ही पार्टी डोमिनेंट रहा. बाकी पार्टीज को इतने सीट्स नहीं मिलते थे कि वो सेंटर में पावर में आ जाए. यस, इन स्टेट्स सम ऑफ द पार्टीज वर देयर. देन नॉर्मली सेंटर और स्टेट्स का जो 36 का आंकड़ा रहता था, बिकॉज दे डिड नॉट हैव अ कॉर्डियल रिलेशंस. बट आफ्टर 1990s वी had several jolts. जो बच्चे बाद में पॉलिटिकल साइंस को एज अ करियर लेंगे, वो लोग पढ़ेंगे that there were many jolts, and because of that the coalition government came into existence. coalition का मतलब है नॉर्मली उसके बाद मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया. 70s के बाद आपके नंबर ऑफ पार्टीज एट द स्टेट एट द सेंटर लेवल आने लग गए. लाइक जनता दल आया, फिर आरजेडी आया, बीजेपी आया, बीएसपी आया. सो जैसे 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 लोग बढ़ते चले गए, मान लो आप 50 लोग हो, नाउ यू आर लिविंग इन वन रूम, तो आपके लिए है. लेकिन जैसे 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 आप लोगों ने अपना 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 घर बना लिया, तो उतने घर हो गए. in the similar manner द पार्टी सिस्टम की वजह से क्या हुआ, वोट्स भी आपके बट गए. Normally, no major political party got the power, and therefore they used to take into coalition. But coalition में क्या होता है, always there is, अच्छा मैं आपको इतने सीट्स दूंगा तो आप मुझे ये मिनिस्ट्री दोगे. And most of the time it would lead into conflict, and that gave birth to another coalition जिसको हम बोलते हैं alliance party, alliance politics. यानी कि इसमें आपको इलेक्शन लड़ने से पहले ही द सपोर्ट इज गिवन टू द सेम पार्टी, चाहे वो पार्टी को मतलब कि दैट पार्टी कम्स इनटू पावर और नॉट. और मोस्ट ऑफ द रीजनल पार्टीज और द स्मॉलर पार्टीज उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं. एंड इन आवर कंट्री राइट नाउ वी आर हैविंग यूपीए, वी आर हैविंग एनडीए एंड लेफ्ट फ्रंट. बट राइट नाउ एनडीए हैज बीन इन द रूलिंग पार्टी, इवन दो पिछले जो 2 इलेक्शन है उसमें बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी मिली है, लेकिन उसको हम एनडीए इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको पीछे से बहुत सारे पार्टी सपोर्ट करते हैं. एंड तब से जो सेंटर एंड स्टेट का रिलेशन है, मतलब जो रीजनल पार्टीज हैं, दे हैव आल्सो नाउ अंडरस्टूड हमें सेंटर के साथ बना के रखना है. एंड द सेंटर इज आल्सो मेकिंग एफर्ट्स कि वो रीजनल पार्टी के साथ दे आर हैविंग गुड रिलेशंस. यहां तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था. नाउ we are moving to the last section कि हमारे इंडिया के अंदर why do we call India a federal, what are the things that we practice में एक बहुत important concept है, वो है decentralization. Now let us come to a family. ठीक है, एक फैमिली है, दादा है, दादी है. मैं एक जनरल फैमिली बता रही हूँ. दादा है, दादी है, मम्मी है, पापा है, चाचा है, चाची है, बुआ है, बड़े सारे बच्चे हैं, सब एक छत के नीचे रहते हैं. ठीक है. नाउ बिकॉज दादा दादी पुराने हैं, ओल्ड टाइप हैं, मम्मी पापा थोड़े थोड़े मॉडर्न, बच्चे तो अल्ट्रा मॉडर्न, राइट. अब बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं तो वो उनके मतलब बड़े लोगों के हिसाब से, नॉट मैं तो बड़ी कूल हूँ भाई, सिंपल सी बात है. बट वो कहते हैं ये क्या फटी हुई जीन्स पहन रखी है, देखो इसने अपने ब्लेड से जीन्स को काटा हुआ है. और बच्चा अपना बड़े आराम से कोल्ड ड्रिंक पीता हुआ जा रहा है, राइट. छोटा बच्चा. अब सेकेंड जनरेशन मम्मी पापा वाला जनरेशन है, वो बेचारे बच्चों की सुने, क्योंकि बच्चे कहते हैं मम्मी आपको तो कुछ भी नहीं आता. ऊपर से बड़े लोग कहते हैं भाई तुम तो हमारी बात नहीं सुनती हो. Now when these 3 generations are living together and all the decisions are taken by the grandfather, वो उस पे बैठे हुए झूले में
और वो लेते रहते हैं डिसीजंस। अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, एंड nobody else can even open their mouth. उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, यानी कि द डिसीजन मेकिंग पावर इज इन द टॉप मोस्ट पर्सन ओनली। और ऐसा कंट्री में भी होता है, ऑफिसेस जो आपके कंपनीज होती हैं उनमें भी होता है, और हमारे घरों में भी होता है। अदर्स कैन ओनली फॉलो दैट ऑर्डर, बट दे कैन नॉट ओपन देयर माउथ। दादा जो है वो बता देते हैं, ये तेरे घर का खर्चा, ये तेरे घर का खर्चा, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए। Nobody can say हमें इससे ज्यादा चाहिए, nobody can say हमें इससे कम चाहिए। अब ऐसे में क्या होता है, डेफिनेटली एट वन पीरियड सबको अपने अपने खर्चे होते हैं। आई ऑल्सो हैव मैं मतलब कि इवन दो आई एम टेकिंग द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस, लेकिन मेरे अपने खर्चे हैं, मेरे अपने खर्चे हैं। खर्चे का मतलब थोड़ी कि मैं अपने लिए सामान खरीद रही हूँ। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई हैव टू बाय फॉर माई। नाउ आई कैन नॉट गो टू द ग्रैंडफादर, क्या किया जाए? वहां पर देयर इज वन कंसेप्ट which we call as decentralization. Yes, you can't say monarchy क्योंकि monarchy में तो वो राजा होते हैं, but yes, the power is concentrated it with one power, with one government. Very true, Vaibhav, very nice. I'm happy that you are listening, hearing properly. Yes, हम एक मतलब मोनार्की में तो ये हो गया ना कि हम उनको राजा बना देते हैं, बट यहाँ पर राजा नहीं है, ऑटोमेटिकली the elder or the power, the person who is having the power is taking all the decisions. Now ऐसा अगर हमारे गवर्नमेंट में हो, all the decisions are taken by union government and state governments या फिर नीचे हैं, उनको सिर्फ सुनना पड़ेगा, तो what will happen is half of the problems of our country can never be solved. क्योंकि अब एक बच्चे का बाथरूम खराब है तो दूसरे बच्चे का बाथरूम थोड़ी खराब होगा। एक बच्चा कहता है मेरा तो एसी खराब हो रहा है, दूसरी फैमिली कहती है कि भाई हमारा तो बाथरूम खराब हो रहा है। जितने आपकी फैमिली मेंबर्स उतने प्रॉब्लम्स। अब एक दादाजी ने अगर बोल दिया कि नहीं आपको इतना ही पैसा मिलेगा, तो बाकी लोग कैसे संभालेंगे? And everyone has their own problem. Certain things can be discussed, certain things cannot be. हमें अपने आप देखना पड़ता है। कंट्री के अंदर भी सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक चार्ज ऑफ थिंग्स लाइक डिफेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, लेकिन जो लोकल लेवल पर अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। अब मद्रास के अंदर, चेन्नई के अंदर अलग से प्रॉब्लम चलती है। आप मानो या ना मानो, मैं उनके प्रॉब्लम्स को सुनती तो मैं कहती हूँ अच्छा ऐसा प्रॉब्लम होता है, मुझे सचमुच में ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। मेरे से भी मेरी जो इमीडिएट भाभी है, मतलब हस्बैंड की भाभी, वो मेरे से भी 6 महीने छोटी हैं, लेकिन वो कहती हैं कि वो बहुत बूढ़ी हैं, शी कैन नॉट मूव फ्रॉम एनी प्लेस। मैं उनसे पूछती हूँ अच्छा ऐसा भी होता है? मैं सोचती होता होगा, क्योंकि उनके लेवल पे वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर वो अपने मार्केट से, मानेंगे नहीं आप, अगर वो अपने घर से, और उनका घर कितना दूर होता है मान नहीं सकते हो, 5 या 6 मकान छोड़कर वो मार्केट जाती ना, कहती मैं जाकर मार्केट से सारा सामान लेकर आई थी, तुम्हारे भैया ने कुछ नहीं किया था। और मुझे तो समझ नहीं आता, क्योंकि मैं तो अपने घर को छोड़ दो, मेरी सिस्टर के घर का और मेरी मम्मी के घर का भी सारा सामान मैं ही भिजवा देती हूँ ऑनलाइन। और मेरे लिए, उनके लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। मेरे को लगता है अरे क्या हुआ, मैं नीचे उतरूंगी तो मेरी शॉप है। तो एवरी हाउस, एवरी स्टेट हैज इट्स ओन प्रॉब्लम, इट्स ओन रेवेन्यूज। अब पंजाब में वाटर की प्रॉब्लम है बिकॉज देयर इज ओवर इरिगेशन, whereas in Tamil Nadu
वाटर की प्रॉब्लम है, बट वहां पर मतलब कि वहां पर जो है रिवर्स नहीं है, पानी दोनों को प्रॉब्लम है वाटर की, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है ड्यू टू ओवर इरिगेशन, वहां प्रॉब्लम है बिकॉज देयर इज मतलब कि एक ही रिवर है एंड दे डोंट गेट सफिशिएंट वाटर। तो क्या एक ही प्रॉब्लम को दोनों मतलब कि एक ही सोल्यूशन को दोनों में डाल सकते हैं हम? नो। एंड इसीलिए इन आवर कंट्री वी फॉलो, हम लोग जो है सम ऑफ द पावर्स आर विथ सेंटर एंड सम ऑफ द पावर्स आर विथ स्टेट्स। पहले स्टेट्स की अपनी मतलब स्टेट्स जो थे दे वर रिस्पॉन्सिबल कि उनके उन स्टेट्स में जो विलेजेस हैं उनकी भी वो देखभाल करे, लेकिन विलेजेस की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। Therefore, in our country in 1990s, the constitution was amended and दो आपके जो है अमेंडमेंट्स लेकर आए, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए और उसके अकॉर्डिंग ऑल द अर्बन एरियाज, शहर के जो एरियाज है उनको छोटे यूनिट्स में कर दिया गया। एंड स्टेट तो अपने लेवल पर करता है, लेकिन जो म्यूनिसिपल होता है वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है दे आर एबल टू टेक द डिसीजंस। एंड इन द रूरल एरियाज हमारे यहाँ पहले ही वी यूज टू हैव पंचायत, लेकिन पंचायत जो था वो तो सिर्फ अपने, जैसे मैंने अभी वो दादाजी की कहानी सुनाई, वो होता था पंचायत। जरूरी नहीं है कि दैट इज गवर्नमेंट उसको जो है रिकॉग्नाइज करे, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्ड द पंचायत सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। पहले स्टेट्स की मर्जी होती थी वो पंचायत को ले या ना ले, लेकिन अब कंपलसरी है। द विलेजेस हैव बीन डिवाइडेड, वहां कंपलसरी आपके जो है इलेक्शंस होते हैं एंड ऑल द डिसीजंस व्हिच आर पर्टेनिंग टू देयर प्रॉब्लम्स। जो मैंने अभी आपको एक कहानी सुनाई कि दादाजी सारे प्रॉब्लम्स को नहीं ले सकते, मम्मी पापा सारे प्रॉब्लम्स को नहीं ले सकते, बच्चों की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारे लिए शायद वो फिजूल हो, लेकिन वो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बच्चों को अपना एक डिसीजन दे दिया, ओके बेटा तुम लोगों के लिए दिस इज, ये आपका एरिया, यस एवरी विलेज हैज पंचायत। तो एवरी विलेज नहीं आता, मैं बताती हूँ मोनिशा हाउ इट कम्स। व्हाट हैपेंस इज, अब बच्चों को बोल दिया गया बेटा ये तुम्हारा कमरा है, इसकी देखभाल करना, इसका सब कुछ करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये मैं तुमको मंथली जो है आई एम गिविंग यू द पॉकेट मनी, नाउ यू हैव टू, और बाकी तुम कमा के जो तुम्हें करना तुम कर सकते हो। द सेम डिसीजन पावर हैज बीन गिवन टू मम्मी पापा ऑल्सो। मैं अपनी तरफ से एवरी मंथ आई एम गोइंग टू गिव यू दिस मच ऑफ रेवेन्यू, लेकिन अगर तुम्हें अपने आप कमा के तुम्हें कुछ अपने घर के लिए तुम्हें कुछ करना तुम करो। तो नेचुरल है कि एवरीवन हैज द पावर टू मेक द डिसीजंस, अपनी प्रॉब्लम्स को वो बेटर डील कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ decentralization was implemented in our decentralization was implemented in our country. This is what we will be reading today, and I'll tell you the answer also what you said. Not that every village can be having a panchayat. The reason is some villages are very small, some villages are very small, whereas some villages are very big. तो जहां आपके बिग विलेजेस हैं वहां तो आपका पंचायत सिस्टम एक विलेज के लिए एक पंचायत हो सकता है, लेकिन अगर आपका विलेज छोटा है तो देन अ सिंगल मतलब कि 10 या 15, 20, 25, क्योंकि देयर इज अ प्रॉपर मेंशन कि हम किस एरिया को विलेज बोलते हैं, किसको बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जहां लोगों के पास एग्रीकल्चर काम ज्यादा होता है एंड जो पॉपुलेशन होता है इन दैट पर्टिकुलर एरिया नॉट मोर देन 10,000,
then that particular area is called as village. So there is a मतलब constitution ने बोला है किस चीज को हम village बोलते हैं, किसको हम town बोलते हैं, किसको हम city बोलते हैं. So if अब मान लो किसी विलेज में सिर्फ 50 लोग रहते हैं, अब उसके लिए एक पंचायत तो बन नहीं सकता. सो न 3 या 4 और मे बी अराउंड 10-15 विलेजेस मिलकर एक पंचायत बनाती है. वी नोटेड दैट federal governments have 2 or more tiers. We have so far discussed the 2 tiers of government. But a vast country like India cannot be run only through these 2 tiers. क्योंकि हमारे यहाँ तो states इतने बड़े बड़े हैं. उत्तर प्रदेश is larger than Russia. Maharashtra is as big as Germany. Many of these states are internally diverse. मतलब क्योंकि अलग अलग भाषाएं एक ही मतलब एक जगह के अंदर भी. Thus, there is a need for power sharing within. And that is why India needs another tier जिसको हम कहते हैं decentralization, यानी कि the local government. Decentralization का मतलब होता है पावर को नीचे के लेवल में बांट देना. Some powers with union, some powers with state and some powers with local. And इसको हमारे यहाँ local government बोला गया था. When the power is taken from central and state and given to local government, it is called decentralization. Why? ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, but still. The basic idea behind ये वाला जो line है, this came in the paper as explanation. और इसमें आपको डिसेंट्रलाइजेशन को एक्सप्लेन करके उसके फीचर्स बताने थे. द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज व्हिच आर बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल. एज आई टोल्ड यू द एग्जांपल ऑफ द फैमिली. They also have better idea on where to spend money and how to manage things more efficiently. Besides, at the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making, क्योंकि वहाँ number of people कम होते हैं. So they are in the democratic participation. And this is also called as local self-government, यानी कि वो खुद पर rule करते हैं locally. The need for decentralization was recognized in our constitution. पहले हमारे पास सिर्फ 2 थे. Since then, there have been several attempts to decentralize power to the level of village and towns. Panchayats in villages and municipalities were set up in all the states. But they were directly under the control of state government. पहले ऐसा ही होता था. Elections नहीं होते थे. And the local government did not have any power or resources. That is why a major step towards decentralization was taken in 1992, 73rd and 74th Amendment 1992. The constitution was amended to make 3-tier more powerful. यानी कि at the rural level, panchayat was officially properly set up, and in the urban areas, municipalities were. अब डिसेंट्रलाइजेशन के क्या या फिर क्या अमेंडमेंट हुआ था, ये है वो. इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस. पंचायत के अपने इलेक्शंस होते रहते हैं. Seats are reserved in the elected bodies and executive heads of these institutions for scheduled caste, scheduled tribe and other backward. At least 1/3 of all the positions are reserved for women. अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि अगर women जो है she is scheduled tribe, yes, she can be a woman, she can be a scheduled tribe. तभी बहुत सारे आपके जो गांव हैं, ये बड़े बहुत सारे आपके सीरियल्स भी आते हैं, आपने देखा होगा वहां जो विमेन होती हैं दे आर इन द पंच कैटेगरीज. वो एक पहले एक आता था, किस पता नहीं कौन सा था, एक इस देश में ना आना लाड़ो कुछ ऐसा नाम था, आई डोंट रिमेम्बर, इट वाज देयर.
If you see, many of the villages have the women as the sarpanch. This is because 1/3 of the seats have to be given, and this is only in the local government. ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये पेपर का 1 मार्कर क्वेश्चन है. An independent institution called state, क्योंकि अब states के अंदर villages है, तो उस स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है वो पंचायत और म्युनिसिपल के इलेक्शंस को कमीशन करता है, ना कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है. Election Commission of India conducts the elections for the union government. The state governments are required to share some powers and revenue with local government bodies. The nature of sharing varies from state to state. उनको अपने पावर्स भी और अपनी रेवेन्यूज को भी शेयर करना पड़ता है. नाउ ये जो हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज the system of panchayat. Write a short note on panchayat system. So this is the answer to your question. If a village is big village, जहां पर आपकी minimum number of people रहते हैं, तो it may be having 1 ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत का मतलब होता है एक ऐसी बॉडी जिसमें विलेज में जितने लोग 18 साल से बड़े हैं वो ऑटोमेटिकली उसके मेंबर बन जाते हैं. काम वाम नहीं करते, दे आर मेंबर्स. एंड व्हेनेवर देयर इज एन इलेक्शन दे कास्ट देयर वोट्स. लेकिन अगर वो विलेज छोटा है तो आसपास के विलेजेस मिलकर एक ग्राम पंचायत बनाता है. रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज. ईच विलेज और a group of villages in some states has a gram panchayat. This is a council committing of several ward members, often called panch, and a president or sarpanch. इनके इलेक्शंस होते हैं, जितने भी 18 साल से वो लोग सब डालते हैं, और इनके जो काउंसिल मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाता है. उसमें कोई भी खड़ा हो सकता है. The person need not to belong to any political party. The person need not have anything. वो कोई भी खड़ा हो सकता है, किसी भी पोस्ट के लिए खड़ा हो सकता है. डायरेक्ट पार्टिसिपेशन. They are directly elected by all the adult population living in that ward or village. It is the decision making body for the entire village. और वो जो पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं उनमें विमेन भी होती हैं और उनका जो हेड होता है उसको हम सरपंच बोलते हैं. The panchayat works under overall supervision of Gram Sabha, जिसके adult members हैं. All the members, all the voters in the village are its members. They have to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget, to review the performance of Gram Panchayat. वो लोग मिलते रहते हैं, आपस में बात करते हैं. And सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, they are not only talking about the politics. They talk about the day-to-day problems any person has. आप लोगों ने सब नहीं देखा होगा, क्योंकि एक ये मूवी तो ऐसी है जिसके लिए कोई नहीं बोल सकता कि मैम हमने नहीं देखी है. सूर्यवंश सबने देखी होगी. I don't think anyone can say that we have not seen this movie. सूर्यवंश तो सबने देखी होगी, अमिताभ बच्चन जी की. In that he is the head. अमिताभ बच्चन जी जो हैं वो हेड होते हैं. And he is the one जो कोई भी प्रॉब्लम होती है, मार्केट नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, तो he is the one और उनके मेंबर्स मिलकर जो है they go to the district collector and वो लोग बात करते हैं. तो कोई भी छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी प्रॉब्लम हो, जो विलेज लेवल पे प्रॉब्लम्स होती हैं, they are solved. They have the budget. कुछ रेवेन्यू उनके खुद के होते हैं, मतलब कुछ इनकम the panchayats have on their own, and some they get from the state. The local government structure goes right up to the district level. अब पहले तो थे एक गांव या 3-4 गांव मिलकर आपका ग्राम पंचायत बनता है.
A few gram panchayat are again grouped which are called as panchayat samiti, block और मंडल. तीनों का मतलब एक ही है, पंचायत समिति, ब्लॉक, मंडल. मतलब एक गांव का एक पंचायत हुआ और 5-6 ग्राम पंचायत मिलकर एक पंचायत या ब्लॉक या समिति बनता. द मेंबर, और इसके मेंबर कौन करता है? जो पंचायत के मेंबर्स होते हैं वो लोग ब्लॉक या समिति के जो मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं. द ग्राम सभा के मेंबर्स नहीं इलेक्ट करते, जो पंचायत के मेंबर्स होते हैं वो इनको इलेक्ट करते हैं. All the panchayat samitis, mandal in a district together form the Zilla Parishad. Most members of the Zilla Parishad are elected. Members of Lok Sabha, MLA, some officials of other district bodies are also its member. मतलब एक डिस्ट्रिक्ट, जैसे आपका अगर हम लोग दिल्ली बोलते हैं तो दिल्ली के अंदर हमारा, मतलब मैं गांव की तरफ बता रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिटी. ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली के अंदर आप देखोगे अपना अपने मतलब कि उसमें देखोगे तो ईस्ट वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऐसे किया जाता है. यानी कि ग्रुप ऑफ सम समितीज बिकम वन डिस्ट्रिक्ट. जैसे दिलशाद गार्डन कम्स अंडर शादरा डिस्ट्रिक्ट, और इसमें जो भी मेंबर्स होंगे वो लोकल मेंबर्स भी होते हैं, कुछ मतलब कि ऑफिशियल्स भी होते हैं, एमपीज, एमएलए, कोई भी हो सकता है. और इस जिला परिषद के हेड को हम जिला परिषद बोलते हैं. ही इज कॉल्ड एज जिला परिषद. दैट इज हाउ पंचायत सिस्टम इज फॉलोड इन in the rural areas. Similarly, local government bodies exist for urban areas as well. मतलब हम लोग शहरों में रहते हैं. Now in Delhi you have Delhi Municipal Corporation. If you go to Bombay, BMC, Bombay Municipal Corporation. If you go to Pune, वहाँ पे है PMC. Every city has their own municipalities. They are set up in towns. एक सिटी को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में जो है म्युनिसिपैलिटी होती है एक बड़ा, उसके अंदर डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे हिस्से जिसको हम बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस. जैसे पहले था ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन EDMC, वेस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली. राइट नाउ ऑन 23rd May I think साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली एंड आई थिंक वेस्ट दिल्ली को एक, नॉर्थ दिल्ली को एक कर दिया गया है. एंड वी आर हैविंग वन, ये वाला एक सेंट्रल दिल्ली और एक नॉर्थ दिल्ली, 3 है अभी. पहले हमारे पास 5 होते थे, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली. तो ये जो 5 मैंने बोले दे आर कॉल्ड एज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस. एंड इनके इलेक्शंस अलग अलग होते हैं. The municipal chairperson is the political head of municipality. मतलब if you go to the municipal, मतलब बड़े एरिया को देखोगे तो म्युनिसिपल चेयरपर्सन होता है. Whereas जो आपके ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मैंने बोला, वेस्ट दिल्ली मैंने बोला, नॉर्थ दिल्ली बोला या साउथ दिल्ली बोला, उसके जो हेड होते हैं उनको हम बोलते हैं मेयर. ईस्ट दिल्ली का मेयर, वेस्ट दिल्ली का मेयर. एंड दे आल्सो फॉलो द सेम, इनके अपने इलेक्शंस होते हैं. बट मोस्ट ऑफ म्युनिसिपैलिटीज में क्या होता है, यू हैव द पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो एज पार्ट. लाइक अभी हमारे यहाँ पर सेंटर में यूनियन है, इन दी दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट में आम आदमी पार्टी है एंड म्युनिसिपल में बीजेपी है. तो दे कैन बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी. और अभी थोड़े दिन पहले क्या था, यूनियन गवर्नमेंट आपका जो था वो कांग्रेस का था, स्टेट गवर्नमेंट जो है, नहीं, यूनियन गवर्नमेंट आपका बीजेपी का था, स्टेट गवर्नमेंट आम आदमी का था एंड म्युनिसिपैलिटी कांग्रेस का था. वो तीनों आपस में लड़ते रहते थे. इफ यू रिमेम्बर एक टाइम ऐसा आया था कि वो दिलशाद गार्डन में कूड़ों की पहाड़ बन गया था.
वो उसके पास, मृगनयनी के पास, बिकॉज वो कहते थे कि दे आर नॉट गिविंग द सैलरी, वो कहते थे दे आर नॉट पेइंग अस, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हम लोगों को रेवेन्यू नहीं दिया, तो म्यूनसिपैलिटी कहती थी कि हम लोगों को सैलरी नहीं मिली तो हम कूड़ा नहीं उठाएंगे. Often these kinds of problems arises in the municipalities. This is because of the problem कि अगर आपके political party, but in the panchayat system we normally don't have these kinds of problems. The only problem is जो हमारे पंचायत को फेस होता है, पेपर में आया क्वेश्चन है, इवन दो इट इज नीदर, मतलब कहीं नहीं है, बट इट इज गिवन. ये जो आपके पंचायत होते हैं, दे आर ऑल लोकल बॉडीज, बट जो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, डिस्ट्रिक्ट का जो हेड है, जिला परिषद, वो जो होता है वो कौन होता है? ही इज द कलेक्टर. आप लोगों ने अभी कल परसों में पेपर में पढ़ा होगा, यूपीएससी में चाय वाले का बच्चा जो है वो यूपीएससी क्लियर कर गया है, उसका नाम क्या है, शू मेकर. ये जो यूपीएससी से पढ़कर जो लोग कलेक्टर्स बनते हैं, दे आर द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट. समटाइम्स जो ये पंचायत होती है, ये पेपर में ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, दिस इज मेनी ऑफ द टाइम panchayats do not get the funding from the states. ये देखो, states oppose direct funding of panchayats. This is the one. Women Pradhan brings winds of change. This is showing the women participation. Okay, there is some signature on the newspaper. This is just the dates. This is just the dates. Page number 24, 25, ये page number है. So ये जो states oppose direct funding of पंचायत है, this is one of the problems of पंचायत. ये पेपर में एक बार आया है, that what are the problems, या what can we do to strengthen the panchayat system in our country. यही problem हमारे यहाँ आता है, that many of the panchayats face this problem. उनको funding properly नहीं मिलती है. अब उनके पास इतना revenue नहीं होता है, and that is why sometimes one particular village may be developed, the other might not be developed. Because development का मतलब सिर्फ रोड बिछाना, लाइट या पानी नहीं है. There are so many problems that the villages face. For example, they don't have efficient bus services. They don't have efficient health services. Schools नहीं होते हैं. If the panchayats want to open the school, then they don't get the revenue. अब उनके पास इतना पैसा थोड़ी होता कि वो स्कूल खड़ा कर देंगे. So sometimes they don't get these facilities. एंड अगर आपका पंचायत ग्रुप बहुत सारे जो विलेजेस हैं वो मिलके हैं, तो जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होती हैं वो बहुत ही पुअर होती हैं. आई एम नॉट दैट मच अवेयर अबाउट एनी ऑफ द विलेज, बट यस, that is the center and the state may not be cooperating with the panchayats. ये प्रॉब्लम बहुत होती है. I'm not very much aware about the villages, but yes, I went to one of my, मैं तो बहुत पहले अपने विलेज गई थी, हाँ, but now it is a full-fledged town. अब तो वहां जाने के बाद अगर मैं अपना घर भी ढूंढूंगी तो मुझे नहीं पता. बट yes, recently I went to my husband's village and मुझे पहली बार पता लगा था कि विलेज का मतलब भी ऐसा होता है. बिकॉज जो विलेज है वो हम लोगों को यहाँ से सिर्फ 2 hours लगे टू रीच चेन्नई. दैट्स 2.5 hours का हमारी जर्नी थी. बट व्हेन वी रीच चेन्नई, वहां से उस विलेज को जाने के लिए हमारे लिए जो बस थी, दैट टुक 3 hours.
एनीवे हम लोग विलेज के एक पर्टिकुलर एरिया पे पहुंच गए। बाद में पता लगा जी कि उस विलेज तक तो बस नहीं जाती है, मतलब बस जाती है लेकिन वो बस नहीं जाती है। वी हैड टू गेट डाउन। वहां से वो ट्रैक्टर या बैलगाड़ी ऐसी कुछ आती है जो टक 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 तक चलती है और दोनों तरफ से पर आपको खेत दिखाई देते हैं। एंड आफ्टर 25 minutes व्हेन आई रीच द विलेज, आई वाज लिटरली, इट वाज जून 27th, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और मुझे थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत थी। तो मैंने देखा कि वहां दूर दूर तक कोई दुकान नहीं थी। एनीवे हम लोग अपने मतलब घर पहुंच गए। देन वहां पर लाइट एकदम टाइम से जाती और टाइम से आती है। वी स्टेड, रात को लाइट चली गई, अपने टाइम से आई। देन नेक्स्ट डे वी वर सपोज टू गेट बैक टू आवर, चेन्नई आना था। तो मेरे को मेरी मदर इन लॉ ने बताया कि सुबह अगर आपने 5:30 की गाड़ी नहीं ली तो उसके बाद सीधे शाम को 5:30 की गाड़ी होगी। वी वॉन्टेड टू स्टे बैक देयर। हम सुबह 5:30 बजे जब निकले वहां से तो भाई मतलब बस स्टेशन ऐसा लग रहा था, बिकॉज द ट्रांसपोर्टेशन इज लैगिंग। हाँ, रोड्स बहुत अच्छे थे वहां, सिंपल सोबर, but transportation is there. So why this problem is there? Why a particular village is more developed, one particular village is not developed? अभी अगर आप लोग यूपी के बारे में, if you are following the news, will see this is because certain times the states may not be sharing their revenues, and this is where democracy को strengthen करने के लिए we have to strengthen the third tier local government. The same problem had in Delhi also, because if the municipalities आपस में नहीं रखती हैं, if the local government किसी और का है, state government किसी और का है, तो they don't share the revenues. Center to state relationship जो है वो यहाँ पर आ जाता है, and that is some problems that the local government faces. But on the other hand, better participation, direct decision, more women participation, problems at the local level solved, ये सब कुछ वहां का एक अच्छे फीचर्स है. So this is how federalism is practiced in our country. That is, it makes India a federal country. Now let us come to the final. An experiment in Brazil. A city, Porto Alegre in Brazil, has carried out extraordinary experiment in combining decentralization with participative democracy. The city has set up a parallel organization, मतलब एक तो म्युनिसिपल काउंसिल है एंड दूसरा एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो रियल डिसीजन को देखता है. The nearly 13 lakh people in this city get to participate in making the budget for their own cities. The city is divided into many sectors, जैसे हमारे यहाँ हम इसको वार्ड बोलते हैं. The sectors have their meeting, जैसे हमारे यहाँ ग्राम सभा है, कोई भी इसमें participate कर सकता है. And there are meetings which also discusses the issue which is for everyone. Any citizen can participate और even budget को भी डिसाइड किया जाता है. बाद में ये लोग मिलकर म्यूनिसिपैलिटी को वो लोग मतलब की देते हैं. जैसे कि हमारे कंट्री में हम लोग बोले तो RWAs, द रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, अगर ये लोग मिलकर अगर बात करते हैं, about 20,000 people participate in this decision making. This method has ensured money cannot be spent only for the benefits the colonies where rich people. Buses are now run to the poor colonies. Builders cannot evict slum dwellers. In our country, a similar experiment has taken place in some areas in Kerala. Ordinary people have participated. Yes, Kerala model हम बोलते हैं इसको, and we call it as Kerala model. And इसमें बहुत अच्छा था, मतलब मैंने इसके बारे में एक मूवी भी देखी थी एंड आई हैव आल्सो हर्ड अबाउट दिस, दैट ऑल द लोकल पीपल, मतलब दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, दे आर ऑल द कॉमन पीपल लाइक यू एंड मी,
they participate. This new system of local government, that is third tier, is the largest experiment in democracy conducted anywhere in the world. क्योंकि बाकी कंट्रीज में आपके 2 लेवल्स है. थर्ड लेवल उनकी कम्युनिटी गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ तो एक लोकल गवर्नमेंट है. About 36 lakh elected representatives in the panchayats and municipalities are there. This is bigger than population of any country. Constitutional status for local government पहले नहीं था, मैंने आपको बताया. 73rd and 74th amendment जो है, that is rural and urban, इसने हमारे जो डेमोक्रेसी को डीपन किया. हमारे यहाँ पर पंचायत was there when even हमारे यहाँ मोनार्की था. जब राजा लोग होते थे तब भी हमारे यहाँ पंचायत होता था, लेकिन वो होता था अपनी मर्जी से. It was not under any government, but now it is under a government. It has also increased women's representation and voice, क्योंकि बाकी में women के लिए seats reserved नहीं है. And इसमें जो है a person can belong to a backward community as well as a woman. यानी कि any person who is belonging to a so-called tribe can also be the head of the पंच. इसीलिए सबको मिलजुल के रहना पड़ता है. At the same time, यही मैंने आपको पेपर में अभी बताया था, मैंने पेपर में आया था. At the same time, there are many difficulties while elections are held regularly. Gram Sabhas are not held regularly. Most state governments have not transferred significant powers to local government, nor they have given adequate resources. We are thus still a long way from realizing the ideal of self-government. But yes, पीछे there have been many kind of changes in the past 2 years. ये भी आपकी जो book है, this is the new one which I had shared with you. But for the past few years there have been many changes. Many of the village panchayats have been strengthened. इनके पास अपने कुछ पावर्स इनको दिए गए हैं, बट वही मैंने आपको बताया that all the state governments do not share equal power. The same thing is not there in say A state, the same thing may not be there in B state. And उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो सबसे migration, why migration is there? Because in the villages you are not getting opportunities. And if these opportunities can be created, that can be created by the local government, more participation. And that is only possible when the state governments are giving them the power. जब वो लोग अपने पावर को लोकल के साथ में शेयर करेंगे. तो जो मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी दादाजी वाली, हम उसी के साथ खत्म करते हैं. अब दादाजी ने कहा कि भाई आपके कपड़े भी मैं लाऊंगा, आपके जूते भी मैं लाऊंगा. ठीक है, अब दादाजी अपने टाइप का एक कपड़ा और जूता लेकर आ गए. अब बच्चे ने देखा कि भाई दादाजी लेकर आ गए, उसने उसको कैंची से काट के अपने हिसाब से बना दिया. अब दादाजी को गुस्सा आया. अब हमने उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या बोला, दादाजी अपनी रेवेन्यू रखेंगे, कुछ पैसा वो घर में खर्चे के लिए देंगे, कुछ पैसा वो अपने जब वो खर्चे के लिए माँ बाप को देंगे तो मम्मी पापा उनमें से कुछ खर्चा बच्चे को दे देंगे. बच्चा अपना खर्चा अपने हिसाब से देख सकता है. सारे कजिन्स मिलके 2 रूम्स में रहते हैं, वो शेयर कर सकते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स है दे कैन शेयर. एंड द पेरेंट्स ऑफ दीज चिल्ड्रन, उनको जो घर की प्रॉब्लम्स है दे कैन शेयर एंड दे कैन, वो अपने अपने लेवल पर अपने अपने बच्चों को दे कैन बेटर डील. ऑन द अदर हैंड पूरी फैमिली के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो दादाजी बैठकर अपना कुर्सी पर अपने आराम से ले सकते हैं. इन दिस मैनर द country is united. Otherwise क्या होगा, सब कहेंगे भाई हम अलग जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम अलग जा रहे हैं. And what will happen is the country will be divided into number of states. और हो सकता है बाद में कोई भी स्टेट इंडिया से बाहर ही हो जाए, वो कहे हम आपको इंडिया का स्टेट बनना ही नहीं चाहते. We don't want to be part of India. That can lead to disintegration. In Punjab हमारे यहाँ 1980s we had a severe
terrorism in Punjab. The reason was many of the people belonging to one particular community said उनको सारे powers नहीं मिलते हैं और वो पंजाब से अलग होकर एक अलग देश बनाना चाहते हैं जिसका नाम है खालिस्तान. खालिस्तान. And that led to many problems in our country. But that was हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त मिसेस इंदिरा गांधी, उन्होंने उसको बहुत, जिसको हम कह सकते हैं गोली बंदूक से भी, एंड डिप्लोमेटिकली शी सेड दैट ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, खालिस्तान वालिस्तान सब भूल गए, एंड पंजाब रिमेन पंजाब. द मीनिंग इज, अगर गवर्नमेंट इज नॉट शेयरिंग द पावर्स at the local level, then in the later stages there might be division of the country. So federalism का जो सबसे बड़ा spirit होता है वो ये होता है unity of the country and also to accommodate the diversity. अब diversity can be within the with the states also. Punjab is Punjabis, Haryana is for Haryanvi. लेकिन within Haryana also there might be different people. Not everyone will be praying to the same God. Not everyone will be following the same culture. और अगर हम लोकल लेवल पर अपने शेयर पावर को शेयर नहीं करते, स्टेट लेवल पर नहीं करते, तो व्हाट विल हैपन इज द कंट्री विल डिसइंटीग्रेट. सो दैट इज व्हाई फेडरलिज्म जो है दैट स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी. सो दैट इज द चैप्टर फेडरलिज्म.